What is the best and the worst part of taking commerce as a stream? Us bro, us. मुझे भी जल्दी उठना बहुत पसंद, मुझसे अभी जल्दी नहीं उठा जा रहा है. What are the future plans in your stream? Maximum sleep time and study time for class 10th. आपकी कोई फनी स्टोरी या फिर आपकी ऐसी स्टोरी जिसमें आपको बहुत डर लगा हो? So hey you all, welcome back to my YouTube channel. I'm Himangi and I welcome you all to this new video and a long awaited video, which is my Q&A video. I uploaded this community post on my channel and I asked you guys to ask me some questions, and you guys have asked me a lot of questions. I'm very excited to answer all of them, and sorry for the delay in the video. I have been very busy with my pre-boards and then my farewell was there, so this entire week I was like so much busy. I didn't got chance to shoot this video, but today when I got done with all of my exam, all of my pre-boards, all the like farewell and stuff, I just sat down to film this video, and here you go. And without any further ado, let's go and get started with the video. Also, before we get started with the video, I want to just see that we are so close to 10,000 subscribers, you guys, so please help me to reach 10,000 subscribers super soon, because I have so many exciting things planned when we hit 10k. So please help me to do that, and if you haven't subscribed to my channel already, please do that and support my YouTube channel. So now I'm going to take questions from my phone and answer all of them. So very first question is asked by Prachi. Hi Prachi, she has asked that I am a 10th grader, I need some guidance here. What factors did you consider while choosing your career or stream? What are the future plans in your stream? So first of all, I chose commerce, and my future plans in commerce field is doing MBA and starting my own business. I'll let you know about that once I get done with my 12th standard, and I'll let you know all the plans that I have for my future. But as of now, the second question is that what factors did you consider while choosing your career or stream? Now I just considered two factors. First, I should have my interest. I was good in doing science, but I was very much not interested in that whole concept of science. I was very bored by physics, biology and chemistry, but I was very much interested in knowing about business and studying about business. So that is why I chose commerce. So first, my main factor was that I should have my interest in it, and second, I should have more career option in that field. After you choose science, I'm not at all saying that science is not a good stream, but here are my personal opinion that after choosing science, there is only two things which you can do according to my knowledge, that you can either do medical or engineering, and there are sub sections in that two fields, but I was not at all interested in medical either or engineering. So that is why there are two factors which I considered. First one was I should have interest, and second one that there should be a scope of careers in that field. That is why I chose commerce. Second question is asked by Saleha. Hi Saleha. So she has asked that please give me some tips that how to be consistent in studies. Now consistency is very important in studies if you want to score good marks, and for that the only thing which can help you is by tracking. Now I have this trackers made, if you guys can see. First of all, I have my 20-day strategy for my extra subject, then I have my paper solving strategy and my calendar. So whenever I wake up in the morning, I will look at these two trackers. I get to know what I have to do, and I will have to complete that task on that day itself. Otherwise वो backlog हो जाएगा, और उसके बाद मुझे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, because complete तो करना ही है. So why not complete that on that day itself? So that is how I be consistent in study. I make this tracker, and हर रोज़ मुझे वो टिक करना ही पड़ता है. अगर मैं नहीं करूँगी तो आगे बैकलॉग हो जाएगा, और उसके बाद मुझे ही प्रॉब्लम होगी. इससे अच्छा मैं हर रोज़ कंसिस्टेंटली मेरा जितना भी पढ़ाई का काम होता है मैं उतना कंप्लीट कर देती हूँ. So that is how I become productive in my studies. So next question is, hey, hope you are good. Yes, I am good. I hope you are good as well. My question is that how can a teenager grow his channel with studies, and what recommendations will you give to a teenager to open that type of channel and upload that type of content? Now I have been doing YouTube from past 4 years at this point. In May, my channel's 4th birthday will be there, and I'm very excited for that. Still, I haven't experienced a massive growth on my channel, but I am believing in universe and the higher energy that my day will also come, and when the day will come, my channel will grow at a magnanimous speed, and I'm very excited for that day. But till then, I will keep working hard and create content for you guys. Coming on to this question, that how a teenager like me can grow his YouTube channel. So first things first, you need to be authentic and you need to be consistent. Consistency is the key. Now my father always tell me that if you want to grow your YouTube channel, by the way, he is also a content creator like me only. I will link his YouTube channel down in the description box. You can check him out as well. Now coming on to the question that you need to be consistent in your YouTube channel if you want to grow it. You need to upload videos continuously at a particular date and particular time. If you do that, then only your
YouTube channel and your videos will pop up, and the YouTube algorithm will also help you to grow. Now I have also experienced that when I was uploading Friday videos, before 2 to 3 months I was uploading videos, long format videos on Friday, and that I did for 2 months straight, and after 2 months my YouTube channel started to grow. And after some certain time my schedule got a little busy and I was not able to upload videos on Friday, and I become a little inconsistent, and because of that my YouTube growth went a little bit down. So this is the thing, that if you want to grow your YouTube channel, you need to be consistent. So yeah, in a nutshell, if you are a content creator like me, be very consistent. अगर आप YouTube पे long videos नहीं बना पा रहे हो, try shorts. Shorts ज़्यादा आपको help करेंगे अपने YouTube channel को grow करने में. So create shorts, and YouTube channel में long format videos are also important. So keep creating long format videos, but focus more on shorts. Upload shorts consistently, and that will also help your channel to grow. And also, if you are a content creator, a study content creator like me, then you need to share everything that is going on in your study life with your audience. Like for example, whenever I have a test or something, I'll make a short about it and I'll share with my YouTube audience. Whenever I get good marks, whenever I'm like feeling low in my studies, I'll share with my YouTube audience. I'll be very transparent with them about my study life. So that is also a tip which will really help you. Isha has asked that as a 10th grader, I want to ask you, how can I increase my study time? Like after 2 to 3 hours, I feel super bored. How do you study 5 hours straight? First of all, I do not study 5 hours straight. It is not at all possible, because हमारे brain का एक focus time होता है, उसके बाद वो distract होना start हो ही जाएगा no matter what you do. So that is why you need to take breaks. Now if you don't want to study like 2 to 3 hours straight, you can take breaks in between. आप 30 मिनट पढ़ो, 10 मिनट ब्रेक लो, 30 मिनट पढ़ो, 10 मिनट ब्रेक लो. That is also enough, and that will also help you to study for a longer hour of time. This method of studying for 30 minutes and then taking 10 minutes ka break and something like that is called Pomodoro method. If you want to know more about Pomodoro method, I have made a separate video in my Master Studies course, which is live on my channel. If you want to attend that entire course, it is free of cost. I have made just for you guys. You just have to go to my channel and go to the live section. You will find all the 30 videos live on my channel. You can watch that. So I'll link the Pomodoro video in the description, so you can go and watch that out. It will be helping you a lot. Now the next question is, what is the best and the worst part of taking commerce as a stream? Best part, I'll tell you, कॉमर्स इज़ वेरी 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 इंटरेस्टिंग. अगर आपको बिजनेस में इंटरेस्ट है, अगर आपको इंडियन इकोनॉमी के बारे में जानने में इंटरेस्ट है, देन यू कैन टेक कॉमर्स आंखें बंद करके, बिकॉज यू विल इन्जॉय इट अ लॉट. एंड या, दैट इज़ द बेस्ट पार्ट अबाउट टेकिंग कॉमर्स. एंड नेक्स्ट वर्स्ट पार्ट इज़ दैट यू हैव टू लर्न सो मैनी थिंग्स. मतलब आपकी जो BA इको की जो पूरी बुक है, अगर आपको मैं कहूँ कि वो आपको पूरी बुक याद करनी पड़ेगी, दैन इट इज़ नॉट एट ऑल रॉन्ग. यू हैव टू राइट आंसर्स ऑफ 5-6 pages just to get 5 marks, and you have to write a lot, you have to learn a lot. And BA में there are, in my syllabus there are 13 different chapters. All of that chapters have different characteristics, its importance, its elements के characteristics, उसके importance, उसके sub processes. So you have to remember a lot of things, and during the exam it gets super difficult to memorize all of them, to revise all of them. So that is a big difficult part of taking commerce, I would say. But as a stream, I would say commerce is best. It's Cutie has asked, Dean, I am a 10th grader and मुझे पूछना है कि बोर्ड्स के बीच में 4-5 दिन का गैप होता है, उन्हें कैसे यूटिलाइज करें और उनमें कैसे रिविजन करें. नाउ इट इज़ अ टास्क, आई नो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिवाइज इन दैट 4 to 5 days का गैप, बट शुक्र मनाओ कि आपको 4 से 5 दिन का गैप मिला है. मुझे पूछो, मेरे बोर्ड एग्जाम 1 महीने के बाद है, हमको छुट्टी ही नहीं मिली है. 11 मार्च को एग्जाम स्टार्ट होगी, 20 मार्च को एग्जाम खत्म हो जाएगी. नो छुट्टी व्हाट्सोएवर, यू हैव टू रिवाइज द एंटायर थिंग इन जस्ट 12 hours. सो आपको 4 से 5 दिन की छुट्टी मिली है, भगवान को जाके थैंक यू बोल दो, बिकॉज हम लोग रो रहे हैं उसके लिए. बट अगर आपको छुट्टी मिली है, देन यू हैव टू डिवाइड योर सिलेबस. हर रोज़ आपको अच्छे से यूटिलाइज करना है, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एज वेल. स्लीप पे सेक्रीफाइस मत करो. 4 से 5 दिन का गैप मिला है, उसमें अच्छे से नींद लो, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से अच्छा खाना खाओ. एंड ऑल्सो अगर हम रिविजन की बात करें, सो व्हाट यू कैन डू इज दैट टेक अ शीट ऑफ पेपर एंड देन राइट डाउन योर एंटायर सिलेबस इन दैट पेपर. वो पूरे सिलेबस को 4 पार्ट में डिवाइड करो: हार्ड, मीडियम,
ईजी, वेरी ईजी। ऐसे आप 4 पार्ट्स में वो पूरे सिलेबस को डिवाइड करो, हर रोज़ उन चारों पार्ट में से एक एक चैप्टर उठाओ, 2-2 चैप्टर उठाओ एंड उसके बाद उसको कंप्लीट करो ऑन दैट पर्टिकुलर डे। आप ऐसा भी कर सकते हो कि हार्ड चैप्टर को एक दिन में कंप्लीट किया, मीडियम चैप्टर को एक दिन में कंप्लीट किया। ऐसे करोगे तो आपका सिलेबस अच्छे से कंप्लीट भी होगा, आपका अच्छे से रिवीजन भी होगा एंड यू विल बी एबल टू फोकस ऑन द हार्ड थिंग्स एज वेल, ईजी थिंग एज वेल। सो ऐसे करके आप अपना रिवीजन कर सकते हो। Shamshad Hussain has asked, how are you? I am doing absolutely good. How are you? And question is that maximum sleep time and study time for class 10th. Now I cannot say that आपको कितने घंटे सोना चाहिए, कितने घंटे पढ़ना चाहिए, it depends on the time period. अगर आपके बोर्ड्स अभी आ रहे हैं, of course we have to study more, right? लेकिन अगर आप अभी आपका 10th standard start हुआ है, it is like the August time or September time, then आप अच्छे से enjoy करो अपने 10th standard को. I'm not saying don't study. Study for 4 to 5 hours a day, it is enough, and sleep अच्छे से लो. But अगर आपका अभी का टाइम है, मार्च का टाइम है, व्हेन योर बोर्ड एग्जाम्स आर अप्रोचिंग, ट्राई टू स्टडी फॉर 10 आवर्स एटलीस्ट, 10 घंटे पढ़ो एंड ऑल्सो टेक 6 आवर्स स्लीप मिनिमम। 6 घंटे की मिनिमम नींद लो, नींद पे सेक्रीफाइस मत करो। आई हैव डिड दिस मिस्टेक इन माई 10th स्टैंडर्ड एंड आई स्टिल रिग्रेट इट। सो अच्छे से नींद लो, अच्छे से अपनी बॉडी को नर्चर करो एंड डोंट लेट योर सेल्फ बर्न आउट। अच्छे से पढ़ाई भी करो लेकिन एंड अपने हेल्थ का भी ध्यान रखो। सो या डू दैट एंड स्टडी फॉर 10 आवर्स, इट्स मिनिमम, इट्स मैक्सिमम, या इट्स गुड टाइम एंड टेक 6 आवर्स ऑफ स्लीप एटलीस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सिंस आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 CBSE, मैंने अपना सिलेबस स्टार्ट नहीं किया है अभी तक। 21 Feb को मेरा फर्स्ट पेपर है हिंदी का। आई वॉन्ट टू स्कोर 98%। आई नो आई कैन स्कोर, बट मेरे पढ़ाई में मन नहीं लगता, टाइम पास करने की हैबिट बन चुकी है, फ़ोन चलाने का मन करता है, फ़ोन के बिना पढ़ भी नहीं सकते बिकॉज यूट्यूब से पढ़ती हूँ। मुझे रात को पढ़ना ज़्यादा पसंद है लेकिन मैं रात को सो जाती हूँ। प्लीज़ हेल्प मी टू स्टॉप माई हैबिट ऑफ टाइम पास एज वेल एज लेजीनेस। नाउ ये 1 महीने पहले की हिमांगी बहुत रिलेट कर पाएगी बिकॉज ये सेम चीज़ मेरी भी कंडीशन थी कि मैं बहुत ही लेट उठती थी, मैं पूरे दिन टाइम पास करती थी। ट्यूशन से आने के बाद मन नहीं लगता था पढ़ाई में, मेरे फ़ोन का स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। बट देन हाउ आई ओवरकेम इट, आई जस्ट ओवरकेम इट by doing 3 things. I already made a short on it. If you want to go, you can click on the I button and check that out. Now what I did was that I first of all went on a peaceful place. एक नोटबुक लेके गई मैं एंड मैंने जो भी चीज़ें गलत हो रही है मेरी लाइफ में, जैसे कि लेट उठना, टाइम पास करना, स्क्रीन टाइम बढ़ाना, यूट्यूब पे माइंडलेसली स्क्रॉल करना, ये सारी चीज़ें मैंने लिखी एंड देन आई फाउंड आउट द रूट कॉज। रूट कॉज क्या है, इसका ये हैबिट का मेन रीज़न क्या है वो मैंने फाइंड आउट किया एंड उसके बाद आई केम अप विद अ सोल्यूशन। तो अगर आपको इसके बारे में और कुछ जाना, यू कैन गो एंड वॉच दैट शॉर्ट, इट विल हेल्प यू अ लॉट एंड या दैट इज़ माई सिंपल आंसर टू दैट। यू कैन वॉच दैट शॉर्ट, इट विल हेल्प यू अ लॉट एंड यू विल आंसर ऑल द क्वेश्चंस दैट यू हैव। सिमरन हैज़ आस्क्ड दैट फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ आर यू? आई एम एब्सोल्युटली गुड। हाउ आर यू सिमरन? एंड आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क दैट जैसे कि हमारे बोर्ड्स आने वाले हैं, हम रिवीजन कैसे करें और बिल्कुल भी पैनिक ना करें। नाउ अगर आपको रिवीजन के लिए एक परफेक्ट मेथड चाहिए देन यू कैन go and watch the day 20th of our Master Studies 30 Days Transformational Program. I will link that in the description as well. And if you want to complete the entire syllabus and revise that, then you have to start on a particular date and particular time before your boards. अच्छे से boards की 15-20 दिन पहले स्टार्ट करो। एक भी दिन उसके बाद वेस्ट नहीं करना है आपको। कुछ भी हो जाए, पढ़ाई तो करनी ही है उस दिन में, कुछ भी फंक्शन हो, कुछ भी हो, बोर्ड के पहले एक भी दिन अपने वेस्ट मत करो आप, बिकॉज देन यू विल रिग्रेट इट लेटर। एंड पैनिक ना करो उसके लिए। आई वुड जस्ट से दैट टेक ब्रेक्स व्हेन यू नीड। आप पढ़ाई कर रहे हो, अगर आपको लग रहा है ओ माई गॉड आई एम बीइंग एग्जॉस्टेड बाय स्टडिंग दिस, टेक ब्रेक, कोई बात नहीं, ब्रेक ले लो। ब्रेक लेने से ऐसा मत सोचो आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो रही है। जस्ट थिंक दैट आई विल टेक दिस ब्रेक, आई विल नर्चर माई सेल्फ, आई विल रिफ्रेश माई माइंड, आई विल कम बैक एंड स्टडी मोर इफेक्टिवली। एंड ऑल्सो अगर आपका कुछ पोर्शन ऑफ सिलेबस बाकी भी है देन डोंट पैनिक। कुछ नहीं हुआ है, अच्छे से हमारे पास टाइम है, खुद के साथ पॉजिटिव सेल्फ टॉक करो एंड या जस्ट से दैट बहुत टाइम है हमारे पास, हम थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे, थोड़ा ज़्यादा जग लेंगे, हम कंप्लीट करके ही सोएंगे। पैनिक नहीं करना है, हमारे पास बहुत टाइम है, हम अच्छे से कंप्लीट करके ही सोएंगे। ऐसे अच्छे से पॉजिटिव सेल्फ टॉक करो, इट रियली डू अ लॉट ऑफ गुड टू यू। आई ऑलवेज डू दिस थिंग। जब भी मुझे टेंशन हो रही होती है, मैं जस्ट खुद को बोलती हूँ हिमांगी कोई बात नहीं, बहुत टाइम है हमारे पास, हम अच्छे से हमारा सिलेबस कंप्लीट करेंगे, रिवीजन कर लेंगे सब कुछ। बोर्ड एग्जाम के पहले हमको कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, बोर्ड एग्जाम बहुत अच्छी जाएगी, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। तेरे पास तेरे पापा है, मम्मा है, फैमिली है, अपना इतना अच्छा यूट्यूब कम्युनिटी है, क्यों टेंशन ले रही है? एंड आई डू दिस काइंड ऑफ सेल्फ टॉक टू मी, पॉजिटिव सेल्फ टॉक टू मी विच हेल्प मी अ लॉट।
Arnold Justin has asked, sorry if I'm pronouncing your name wrong, and how are you? So he or she has asked, ऐसी कौन सी स्टेजेस होती है जब एक स्टूडेंट को ब्रेक लेना है, क्योंकि जब भी मैं अपनी स्टडी से ब्रेक लेना चाहती हूँ मुझे लगता है कि मैं अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ जहाँ पे मेरे फ्रेंड्स आगे बढ़ रहे हैं। पीयर प्रेशर पे बात हो रही है यहाँ पे। Now, first of all, never consider taking a break as a waste of time unless and until you are wasting that time. मतलब कि अगर आप ब्रेक ले रहे हो, आप माइंडलेसली यूट्यूब पे स्क्रॉल कर रहे हो, रील्स देख रहे हो, फ्रेंड से इन अननेसेसरी चैटिंग कर रहे हो, दैन इट इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम। लेकिन अगर आप ब्रेक लेके अपनी फैमिली के पास जा रहे हो, बातें कर रहे हो, कुछ अच्छा खाना वाना खा के आ रहे हो, अच्छे से सनसेट सनराइज इन्जॉय कर रहे हो, बाहर जाके थोड़ा वॉक करके आ रहे हो, अपने माइंड को फ्रेश करके आ रहे हो, दैन दैट ब्रेक इज़ राइट। लेकिन अगर आप उस ब्रेक में टाइम पास करो, दैन दैट break is wrong. So I always say that whenever you are taking breaks, do those things which refreshes your mind and not let you burn out. So अगर आप ब्रेक ले भी रहे हो तो अच्छी चीज़ें करो जिससे कि आपका माइंड रिफ्रेश हो एंड यू डोंट फील बर्न आउट आफ्टर दैट ब्रेक। एंड पीयर प्रेशर पर तो मैं एक ही बात कहूँगी कि इफ़ यू नो कि आपने अच्छे से प्रिपरेशन की है, अगर आपके पेरेंट्स को पता है आपने अच्छे से प्रिपरेशन की है, आपके हायर एनर्जी को पता है, यूनिवर्स को पता है कि आपने अच्छे से प्रिपरेशन की है, देन व्हाई आर यू थिंकिंग ऑफ दोज फ्रेंड्स जो कि सिर्फ आपको प्रेशराइज कर रहे हैं। अगर आपके फ्रेंड्स एक्चुअल में आपको मोटिवेट नहीं कर रहे पढ़ाई के लिए, आपको हेल्प नहीं कर रहे पढ़ाई के लिए, व्हाई आर यू थिंकिंग ऑफ देम? डू नॉट थिंक दैट दे आर स्टडिंग। हाउ डू यू नो दैट दे आर स्टडिंग? Did you go watch them? Did you go ask them? No, right? So just think of yourself. Do not think of the rest of the world. Just think that you are doing your best. You are giving your best. You are completing all of your tasks. You are doing all the work as you planned. And that is all about it. You do not have to think about the rest of the world, which does not matter to you. Now the next question is, it's Shaurya. Hi Shaurya. Recently your tips helped me a lot, so thank you. You're welcome. I'm absolutely grateful for you guys. And I just want to ask कि पढ़ाई में मन कैसे लगा है? I think ये सारे क्वेश्चन का आंसर मैंने पहले ही दूसरे क्वेश्चंस पे दे दिया है। एंड नेक्स्ट इज पेरेंट्स का प्रेशर कैसे हैंडल कर। नाउ सी, डोंट टेक योर पेरेंट्स इन अ नेगेटिव वे। अगर वो कुछ भी आपको बोल रहे हैं, दे आर टेलिंग यू फॉर द गुड ऑफ यू ओनली। अगर आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, अगर आपका क्लास में फर्स्ट रैंक आएगा, उनको कुछ बेनिफिट होगा? बिल्कुल भी नहीं, आपको ही होगा, राइट? सो वो कुछ भी आपको बोल रहे हैं तो आपकी भलाई के लिए ही बोल रहे होंगे, वो अपने माइंड में हमेशा ही रखो। अगर वो आपको कभी भी ऐसा बोल रहे हैं कि पढ़ाई करने बैठ, फ़ोन मत देख, सो दे आर टेलिंग यू फॉर द गुड ऑफ यू ओनली। लेकिन कभी आपको ऐसा लग रहा है कि ये अभी प्रेशर कर रहा है मुझे, सो गो एंड टॉक टू देम। जस्ट से दैट पप्पा मम्मा, आई एम स्टडिंग माई बेस्ट, मैं अभी ब्रेक ले रही हूँ, मुझे ब्रेक लेने की ज़रूरत है इसलिए मैं ब्रेक ले रही हूँ, लेकिन मैं जब मेरा ब्रेक कंप्लीट होगा तब मैं पढ़ाई करूँगी, तब मैं फ़ोन यूज़ नहीं करूँगी। मेक देम बिलीव इन योर सेल्फ। उन पर अपना भरोसा, अपना ट्रस्ट बिल्ड करो, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे विल नेवर प्रेशराइज यू। अगर उनको आप पे विश्वास है कि हाँ मेरा बेटा मेरी बेटी अच्छे से पढ़ाई कर रही है, उनको बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। Now next question is, hi, I am Kabir. Hello, how are you, Kabir? And the question that he has asked is that, any tips for me? I am a 10th grader. I have completed my entire syllabus except maths. Now I am very happy for you कि आपने अपना पूरा syllabus complete कर लिया. Congratulations for that. अगर आपका maths का syllabus बाकी है, make a schedule for it. अपने जो भी complete कर दिया उसको revision करना मत भूलना, लेकिन उसके साथ साथ आप एक ऐसा schedule बनाओ जिसमें आपका जो भी चैप्टर्स बाकी है मैथ्स का वो आप लिखो, एंड उसको स्पेसिफिक डे अलॉट करो। जैसे कि 10th स्टैंडर्ड का जो ओनली चैप्टर विच आई रिमेंबर इज ट्रिग्नोमेट्री। आपका ट्रिग्नोमेट्री बाकी है फॉर एग्जांपल, तो ट्रिग्नोमेट्री का दो पार्ट कर दो कि हाँ ये वाला फर्स्ट पार्ट है, ये वाला सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट को मैं इस दिन में कंप्लीट करूंगा, सेकंड पार्ट को मैं इस दिन में कंप्लीट करूंगा। ऐसे करके आप एक शेड्यूल बनाओ, उस शेड्यूल को फॉलो करो, एंड दैट इज हाउ यू कैन कंप्लीट योर सिलेबस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्क्ड बाय गेमिंग विथ जानकारी। Such a unique name. My name is Prince. Hi Prince. First question is that, दीदी आप ये बताओ कि आपके हिसाब से एक बच्चे को मैक्सिमम और मिनिमम कितना पढ़ना चाहिए? आई थिंक मैक्सिमम अ स्टूडेंट शुड स्टडी, अगर आप 10th स्टैंडर्ड तक हो, 9th 8th 10th में हो, तो आपको मैक्सिमम 10 घंटे की पढ़ाई इनफ है। उससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय करो। अभी ये आपके टीनेज ईयर वापस नहीं आएंगे। येस, आई एम सेइंग दिस। सो अच्छे से एंजॉय करो अपनी लाइफ को, लेकिन उसके साथ साथ पढ़ाई को भी मैनेज करो। 10 घंटे अगर आपकी एग्जाम नज़दीक आ रही है तो 10 घंटे पढ़ो, उससे ज़्यादा मत पढ़ो, जब तक रिक्वायर्ड ना हो तब तक। एंड या that is what I'll say. Minimum I would say you should study for 3 to 4 hours minimum on an average day. 10th स्टैंडर्ड में हो, 9th स्टैंडर्ड में हो, तब तक आपको 2 to 3 hours की स्टडी मिनिमम एक दिन में करनी चाहिए, ताकि आपका बैकलॉग ना हो, आपको एग्जाम में प्रेशर फील ना हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ आपकी कोई फ़नी स्टोरी या फिर आपकी ऐसी स्टोरी जिसमें आपको बहुत डर लगा हो। डर तो ऐसी कोई स्टोरी हुई नहीं है अभी तक, मेरी ऐसी कोई इंसिडेंट हुआ नहीं जिससे मुझे डर लगा हो, लेकिन फ़नी स्टोरी आई वुड से सोचना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारी फनी स्टोरीज है, तो आई नीड टू थिंक अबाउट सम ऑफ देम। आई एम वेरी सॉरी डियर, बट आई एम नॉट एबल टू कलेक्ट एनी मेमोरी, अ फनी मेमोरी ऑफ माइंड फ्रॉम स्कूल और अभी तक की। आई हैव अ लॉट, आई इट्स नॉट लाइक आई डोंट हैव एनी फनी स्टोरी और एनीथिंग लाइक दैट, आई डू हैव, बट नाउ एट दिस पॉइंट आई एम नॉट एबल टू कलेक्ट दैम, बट इफ आई विल रिमेंबर एनी ऑफ देम आई मेक अ स्टोरी टाइम वीडियो फॉर यू। सो या थर्ड क्वेश्चन इज आपको कैसे मिल सकते हैं, आप कहाँ मिल सकते हो। मैं कोई फालतू नहीं हूँ, आई एम योर यंगर ब्रदर। येस, इफ़ यू वांट टू मीट मी, कम टू गुजरात, मैसेज मी ऑन माई इंस्टाग्राम या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज करो। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मीट यू इफ़ यू कम टू गुजरात अहमदाबाद। सो या नेक्स्ट वीडियो हिंदी में होनी चाहिए पायदी। मैंने आपका क्वेश्चन हिंदी में आंसर किया, बट द अदर क्वेश्चंस वर आस्क्ड इन इंग्लिश, तो मैंने उनको इंग्लिश में आंसर किया बिकॉज आई वांटेड दैट एवरीवन हु हैज़ आस्क्ड देयर क्वेश्चन शुड गेट द आंसर इन देयर मदर लैंग्वेज और द लैंग्वेज विच दे अंडरस्टैंड द बेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई वांट टू वेक अप अर्ली बट आई कांट। अस ब्रो अस, मुझे भी जल्दी उठना बहुत पसंद है, मुझे भी जल्दी उठ के बहुत ही प्रोडक्टिव फील होता है। अगर मैं जल्दी उठ गई, मैं यहाँ पे आ गई, देन इट्स ओवर। मैं बहुत ही अच्छे से 4 से 5 घंटे कंटिन्यूसली पढ़ सकती हूँ विद टेकिंग ब्रेक्स ऑफ कोर्स, बट मुझसे अभी जल्दी नहीं उठा जा रहा है। आई डोंट नो वाई द ग्रेविटी ऑफ द बेड इन द मॉर्निंग इज सो हाई कि मैं उठ के भी वापस सो जाती हूँ। दिस इज द प्रॉब्लम दैट आई एम फेसिंग राइट नाउ। सो वट आई एम डूइंग इज दैट आई टेल यू माई सिनेरियो, देन आई टेल हाउ यू कैन वेक अप अर्ली। सो वट आई एम डूइंग इज दैट मैं दोपहर में सो जाती हूँ, मैं सुबह 9 बजे उठती हूँ, रात को 3 बजे तक पढ़ती हूँ। सो दैट इज़ वॉट आई डू। सो या दैट इज़ वॉट आई एम डूइंग राइट नाउ। जब भी मुझे लगेगा कि हाँ अभी मैं सुबह जल्दी उठ पाऊंगी तो मैं उठ जाऊँगी, अभी नहीं उठा जा रहा है तो आई एम एक्सेप्टिंग माई सेल्फ, नॉट लेटिंग माई सेल्फ बर्डन कि सुबह तुझे जल्दी उठना ही पड़ेगा। मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ खुद को जल्दी नहीं। अगर आपको सुबह जल्दी उठना ही है कुछ भी करके, सो आई विल गिव यू 3 टिप्स। फर्स्ट, अपना दिन प्लान करो कि सुबह उठ के आपको एक्चुअल में करना क्या है। अगर आपको कोई चैप्टर कंप्लीट करना है उसको लिख के रखो, उसका प्लान बनाओ। अगर आपका प्लान रेडी होगा, यू विल हैव दिस प्रेशर कि हाँ मुझे सुबह उठ के ये चीज़ कंप्लीट करनी है, एंड दैट विल हेल्प यू टू मोटिवेट योर सेल्फ टू वेक अप अर्ली। सेकेंड थिंग, प्लेस योर फोन अवे फ्रॉम योर बेड। अगर आपका बेड यहाँ पे, अपने फ़ोन को कोई टेबल पे रख दो ताकि जब अलार्म बजेगा तो आपको उसको बंद करने के लिए वहाँ जाना ही पड़ेगा। एंड इफ़ यू आर वेकिंग अप, वॉकिंग अ लिटिल बिट, ड्रिंकिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, तो आपका माइंड थोड़ा सा अवेक हो जाएगा। एंड या दिस द सेकेंड थिंग। थर्ड थिंग इज़ दैट रात को टाइम से सो जाओ। अगर आप 12 बजे सो रहे हो और सोच रहे हो कि मैं 4 बजे उठ जाऊँगा, नहीं उठ पाओगे। 4 घंटे की नींद पे क्या ही करोगे आप। सो टाइम से, अगर आपको 5 बजे उठना है, 4 बजे उठना है, 10 या 11 बजे सो जाओ। टेक इनफ ऑफ द स्लीप विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Arushi has asked that my question is how to clear backlog. A very commonly asked question by all of my study buddies, that how to create backlog. Sorry, how to retake. आई थिंक आई हैव अ लॉट टू से अबाउट दिस टॉपिक बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ बैकलॉग्स एंड मैंने उनको अभी तक कंप्लीट कर लिया है सबको. सो आई थिंक आई हैव a lot of things to share with you all about this topic, so I am going to make a separate video on this topic very soon. Believe me, I will make it for sure. So now I am keeping this question as my content and I'll make a separate video on this topic for sure. This is my promise to you, Arushi. So now let's take the last question. I think video की duration बहुत ही लंबी हो गई है. I am very sorry for that, but मुझे किसी का भी question miss नहीं करना था. And also I am sorry अगर मैंने आपका question miss कर दिया हो तो I will make more videos. And now let's come on to the last question, which is, Hi हिमांगी दीदी, I am यश. हेलो यश, मुझे आपसे ये पूछना था कि एज ए 11th ग्रेडर जो भी स्ट्रीम लेते हो आप, उसमें फोकस कैसे रहे, कैसे हमको पढ़ना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंटली टाइम कैसे मैनेज करें, एंड हमारा जो इंटरेस्ट है, पैशन है, उसके लिए टाइम कैसे निकालें. सो वन क्वेश्चन दैट आई कैन टेक फ्रॉम दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज दैट हाउ टू मैनेज टाइम एज एन 11th grader, right? So now I'm going to give you a very underrated tip, that is 11th standard is meant for you to enjoy doing the things which you love the most. For example, मैंने मेरे 11th standard में मेरा मास्टर स्टडीज़ का कोर्स बनाया था which did a lot of good to me. मैंने मेरे पैशन को फॉलो किया, मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पे फोकस किया, मैंने बहुत सारी स्किल्स सीखी. ये सारी चीज़ें मैंने 11th स्टैंडर्ड में की बिकॉज आई न्यू कि 12th में आने के बाद आई एम गोइंग टू बी वेरी बिजी, आई विल नॉट गेट टाइम टू डू ऑल ऑफ दिस. सो 10th एंड 12th के बीच का ये जो टाइम है 11th स्टैंडर्ड का, उसमें आप मेक श्योर करो कि आप ऐसी कुछ चीज़ों में इन्वॉल्व हो जो कि आपको एक्चुअल में करना पसंद है. इट कैन बी सिंग,
singing, dancing, making YouTube videos, learning to play a guitar, or anything which you love doing. So yeah, this is my tip to you. And second thing is that how to manage time. If you are not preparing for a competitive exam like NEET or JEE, then make sure to enjoy your 11th standard as well. But if you want to manage your time well, including the study, including the passion, including your other activities, make sure to plan your day नाइसली. अगर आप अपने अच्छे से दिन को प्लान कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आपने पहले से टू डू लिस्ट बना ली कि मुझे आज ये वीडियो शूट करना है, ये वाला चैप्टर कंप्लीट करना है, ये वाला टॉपिक रिवाइज करना है, ये वाला होमवर्क करना है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, तो आपको अपना टाइम मैनेज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी. आपका टाइम ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाएगा बिकॉज आप अपना टाइम उस सारे चीज़ों को दे रहे हो जो कि आपको करनी चाहिए एक दिन में. एंड आई थिंक आई हैव मेड अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस टॉपिक एज वेल. टाइम मैनेजमेंट पे भी मैंने मास्टर स्टडीज़ में एक वीडियो बनाया है सेपरेटली, तो वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगी. आई वुड सजेस्ट कि आप सारे वीडियोस देखो मास्टर स्टडीज़ के. मैंने बहुत छोटे छोटे 15-20 मिनट के वीडियोस बनाए, लेकिन अगर आपने वो वीडियोस को अच्छे से अटेंड किया, आई थिंक आपकी स्टडी लाइफ में बहुत ही अच्छे चेंजेस आएंगे. ये वीडियोस को आप 2x स्पीड पे देख लो बिकॉज तब मेरी थोड़ी बोलने की स्पीड कम थी, आई नो. तो 2x स्पीड पे देख लो एंड अच्छे से वो सारी चीज़ों को नोट डाउन करो, अपनी स्टडीज़ में इंप्लीमेंट करो. आप देखोगे कि आपकी लाइफ में बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे. सो आई विल लिंक द टाइम मैनेजमेंट वीडियो एज वेल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ मास्टर स्टडीज. एंड या विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ टुडेज वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट टिल हियर. अगर मैंने आपके क्वेश्चंस को इंक्लूड नहीं किया आज के वीडियो में, आई एम वेरी वेरी सॉरी फॉर दैट, बट आई विल मेक श्योर टू इंक्लूड योर क्वेश्चंस इन द फ्यूचर Q&A videos. But yeah, as of now it is done for today's video. Thank you so much for watching it till here, and please make sure to subscribe to my YouTube channel because we are very close to 10,000 freaking subscriber. I'm very very excited for that. So yeah, I'm going to see you very soon in my next video. Till then, stay happy, stay safe, study hard, be on track, do not get distracted. I'll see you very soon in my next video. Yeah, bye.